Good morning, children. Today we are going to solve some word sums related to multiplication. I hope you all have learned table from 2 to 10. So let's start solving some word sums. Exercise 7C, which is on page number 63. Question number 1 is, a chess board has 8 rows of 8 squares each. How many squares does it have in all? आपने सबने वो चेस बोर्ड देखा है. चेस बोर्ड में बहुत सारे स्क्वायर्स बने हुए होते हैं छोटे छोटे से, और बहुत सारी रोज होती है जिनमें स्क्वायर्स होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट कलर के. सो उसमें ये कह रहे हैं कि 8 रोज हैं उस चेस बोर्ड की जिसमें 8 स्क्वायर्स हैं इन ईच रो. यहाँ कितने स्क्वायर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. सो हमें बताना है कि टोटल स्क्वायर्स कितने होंगे. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई 8 बाय 8 and 8 into 8 is 64. So 64 squares will be answer. Then in question number 2, a toy needs 3 batteries. How many batteries are needed for 6 of these toys? एक टॉय है जिसमें टोटल 3 बैटरीज लगती हैं. सो अगर ऐसे 6 टॉयज होंगे तो उसमें कितनी बैटरीज की हमें नीड होगी. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 3 by 6 and 3 into 6 is 18. So 18 बैटरीज की नीड होगी. Then question number 3, teams from 9 schools took part in a quiz contest. Each team had 4 members. How many children took part in the contest? 9 schools की कुछ teams ने एक quiz में part लिया था जिसमें each team, हर एक team के कितने members थे? 4 members थे. So हमें ये बताना है how many children took part in the contest. कितने total children थे जिन्होंने part लिया था quiz पे. So क्या करोगे आप? आपको 9 को 4 से multiply करना है and 9 into 4 is 36. So there were 36 children who took part in the quiz. Question number 4 is, a CD box holds 12 CDs. How many CDs will 8 such boxes have? एक CD box में 12 CDs आती हैं, तो अगर ऐसे total 8 boxes होंगे तो total कितनी CDs होंगी? What we have to do, again we have to multiply 12 by 8 and 12 into 8 is 96. तो 96 CDs होंगी. These 4 questions you have to do in your book. बुक के यहाँ पे आपके साइड में स्पेस है ना, उस स्पेस में आप ये क्वेश्चंस करेंगे by multiplying the numbers. You have to do this question number 5 all parts in the notebook. So let's see what are these questions. Question number 5, A part is, Adil has a piece of square paper. The piece has 11 rows and 9 columns of squares. How many squares does it have in all? अब आदिल के पास एक स्क्वायर पेपर है जिसमें कितनी रोज है? 11 रोज है एंड 9 कॉलम्स बने हुए हैं. सो हाउ मेनी स्क्वायर्स डज इट हैव इन ऑल? अब उसमें टोटल कितने स्क्वायर्स होंगे दैट वी हैव टू फाइंड. सो हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. नंबर ऑफ रोज आर 11, नंबर ऑफ कॉलम्स आर 9. सो नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर, क्या करना है हमें, इसको 11 को 9 से मल्टीप्लाई करना है. सो 9 into 1 is 9, 9 into 1 is 9. So it has 99 squares in all. This type you have to do this solution in your notebook, and remember you have to write this number in each boxes. one boxes में आपके one number आने चाहिए. B part is, a paint box has 16 tubes of paints. How many tubes will 5 such boxes have? एक पेंट बॉक्स में कितनी ट्यूब्स है पेंट्स की? 16 ट्यूब्स है. एंड हाउ मैनी ट्यूब्स विल 5 सच बॉक्सेस हैव? अगर ऐसे 5 बॉक्सेस आते हैं तो टोटल कितनी ट्यूब्स हो जाएंगी? सो हियर इज द सॉल्यूशन. नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ पेंट इन वन बॉक्स में कितनी ट्यूब्स थी? 16 ट्यूब्स. सो अब ऐसे कितने बॉक्सेस है? 5 बॉक्सेस है, तो उसमें नंबर ऑफ ट्यूब्स कितनी हो जाएगी? वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 5 बाय दिस 16. सो मल्टीप्लाई इट. 5 into 6 is 30. 0 here. 3 carry forward. 5 into 1 is 5 and you have to add this 3. So 5 plus 3 is 8. So the answer is 80. Next C part is, a day has 24 hours. एक day में 24 hours होते हैं. How many hours does a week have? अब एक week में कितने days होंगे that we have to find. So we all know in one day there are 24 hours. In one week there are 7 days. So हमें यहाँ ये बताना है कि week में कितने hours होते हैं. What we have to do, we have to multiply this 24 by this 7. So multiply it. 7 into 4 is 28. 8 here. 2 carry forward. 7 into 2 is 14. 14 plus 2 is 16. So there are 168 hours in a week. In next part, D part, Pia's school was closed for 45 days for summer holidays. Pia की जो school है वो 45 days summer holidays के लिए close रहती है.
एवरी डे शी डिड 6 सम्स, और हर दिन वो क्या करती है 6 सम्स सॉल्व करती है. हाउ मेनी सम्स डिड शी डू ड्यूरिंग द हॉलीडेज. और वो टोटल जितने भी उसके हॉलीडेज थी उसमें उसने टोटल कितने सम्स जो है वो सॉल्व किए. सो व्हाट यू हैव टू डू, समर हॉलीडेज में डेज कितने थे 45, और हर दिन वो क्या कर रही है 6 सम सॉल्व कर रही है. सो टोटल नंबर ऑफ डेज को आप क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट योर आंसर. This question you will do on your own in your notebook. Next, moving to E part, the calendar for a month has 4 rows. Each row has 7 days. Which month's calendar is it? The calendar for a month. किसी कैलेंडर में एक मंथ की बात कर रहे हैं जिसमें रोज कितनी है 4 रोज है ऑफ डेज, एंड ईच रो है 7 डेज, और हर रो में क्या आ रहा है 7 डेज आ रहे हैं. विच मंथ्स कैलेंडर इज इट, हमें ये बताना है कि वो कैलेंडर का कौन सा मंथ है. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डेज. ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, नंबर ऑफ रोज आर गिवन 4 एंड ईच रो हैज हाउ मेनी डेज 7 डेज. सो टोटल नंबर ऑफ डेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इस रो को इन डेज से मल्टीप्लाई करना है. सो 4 into 7 is 28 days, and we all know कि 28 days कौन से मंथ में आते हैं, in the month of February. So the answer is February. So children, here is your homework. Question number 1, 2, 3, 4 of exercise 7C जो word sums आपको दिए हुए हैं वो आपको साइड में बुक में ही करने हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 5 के ऑल पार्ट्स A B C D E ये सारे पार्ट्स क्या करने हैं आपको आपकी नोटबुक में करने हैं. थैंक यू.